Good morning, everyone. We are going to start chapter number 5, Introduction to PowerPoint. Uh, First of all, you have to understand what is presentation. Presentation is a way in which you can express your ideas, your opinion in front of large group of people. You can add anything in your presentation. You can add your drawings, you can add any type of pictures, you can add videos, you can add audio, you can add everything, and it looks very decorative and attractive to present your ideas in a beautiful manner. ठीक है. PowerPoint is a powerful tool using which you can make presentations and you can present it in front of your audience in an effective way. ठीक है. तो हम वैसे तो प्रेजेंटेशन हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं आजकल अवेलेबल मार्केट में, आप उनके थ्रू बना सकते हो, बट द मोस्ट कॉमन वे जो आपको सिर्फ स्कूल लाइफ में ही नहीं, इवन आप जब ऑफिसेज में जाओगे या कहीं भी जब जॉब करोगे या कॉलेजेस में जाओगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे या कुछ भी सबमिशंस होते हैं ना, तो वो हमेशा पावर पॉइंट या इफ यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग, लेट्स से कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर पोर्टफोलियो कि आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या किया है, कितनी कितनी चीजें करी हैं. You can present it in the form of PowerPoint presentation. That is a beautiful idea. You are presenting your whole life, whatever you have done till now, in a form of a video. Okay, so that can be done easily with the help of PowerPoint. ठीक है. Microsoft PowerPoint is a uh, it's a package. माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. सो माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint is a package which using which you can create your dynamic presentations. Dynamic means जिसमें आप कभी भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बना दी तो अब हमेशा के लिए वही सेम रहेगी. यू कैन डू द एडिटिंग एनी टाइम, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो. यू कैन टाइप योर ओन टेक्स्ट, आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, साउंड इंसर्ट कर सकते हो, एनिमेशन इफेक्ट्स दे सकते हो, वीडियोस इंसर्ट कर सकते हो. एंड यू कैन मतलब यू कैन ब्रिंग अ लाइफ टू योर प्रेजेंटेशन. आप उसको एक एक वीडियो की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. पूरी एग्जैक्टली इन द वे यू वांट, कि आपको चाहिए कि एनिमेशन में ऊपर से टेक्स्ट आना चाहिए या नीचे से आना चाहिए या पिक्चर्स राइट साइड से आनी चाहिए. यू कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ एडिटिंग. What is the benefit of using PowerPoint? It helps to present our ideas in a form of pictures, graph, figures, and animation in a beautiful manner. It helps you to structure your ideas and information that you wanted to convey to your audience. तो आपने अपने audience को जो भी present करना है, you can present it in a beautiful way. It is used to make ideas attractive so that it can be easily understood and remembered by others. Let's say आपको एक मैथ्स की या एक साइंस की क्लोथ्स के ऊपर एक पावर पॉइंट बनानी है. क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स विच वी कैन वियर इन डिफरेंट सीजन्स. तो आपको उसके ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है. तो इफ यू विल बी डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ पीपीटी, आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स इंसर्ट करोगे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के. तो एंड यू कैन गिव एनिमेशन टू ईच ऑफ द क्लोथ्स. और अगर आप इसको यही को इसी सेम को अगर आप पेज पे बनाओगे और पेपर पे क्लोथ्स को पेस्ट कर दोगे, डिफरेंट सीजन्स के क्लोथ्स को, इट विल नॉट लुक वेरी इफेक्टिव. बट अगर आप सेम चीज को आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू करोगे, it will look very attractive because you can give animation effects also. Now, let's understand how to start the PowerPoint presentation. You have to go to the Start button, then go to All Programs, go to Microsoft Office. This is Microsoft Office, and click on PowerPoint.
Now this is how PowerPoint looks like. ये slide होती है where you can put your content, your pictures, your everything, and यहाँ पे single page नहीं होता. For example, आपको clothes के ऊपर presentation बनानी है, you can take different slides for different seasons. Like आप एक rainy day की बना सकते हो, एक winters की बना सकते हो, एक summer की बना सकते हो, एक autumn की बना सकते हो, and you can display different types of cloths या different types of crops दिखानी है आपने, और यू वांटेड टू मे बी आपको क्लोथ्स दिखाने हैं फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया की, वहाँ पे किस टाइप की जो ड्रेसिंग सेंस है, पंजाब की, हरियाणा की, बंगाल की, राजस्थान की, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस या मे बी द फूड आइटम्स यू वांटेड टू डिस्प्ले, तो आप डिफरेंट स्लाइड्स बना सकते हो हर एक चीज की. So it's a beautiful way to present your ideas in front of large group of people. ठीक है? Okay. Now let's understand what are the different parts of the screen. This is PowerPoint. इसमें सबसे पहली चीज आती है ये जो हमारा सेंटर में जहां पर आ रहा है क्लिक टू ऐड द टाइटल. दिस इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर में आप क्या कर सकते हो, यू कैन टाइप योर टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने सेम टॉपिक लेना है, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, and subtopic is based on seasons. ठीक है, तो आपने टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दिखाने हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन्स, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन. सो बेस्ड ऑन सीजन्स यू वांटेड टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, सो दिस दिस इज नोन एज प्लेस होल्डर. जो प्लेस होल्डर मतलब जो आपके कंटेंट को होल्ड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर. These are called as tabs: home tab, insert tab, design tab, transition tab, animation tab. These are called as tabs. और जो सबसे टॉप पे रेड कलर की जो बार आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज टाइटल बार, विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ योर पीपीटी और द नेम ऑफ योर फाइल. ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंटेशन वन. बाय डिफॉल्ट जब तक आप कभी भी कोई नेम नहीं दोगे अपनी प्रेजेंटेशन को, बाय डिफॉल्ट इट विल शो यू प्रेजेंटेशन वन. राइट. These are called as quick access toolbar. Quick access toolbar में shortcut keys होती हैं, जैसे सेव करने के लिए, या फिर आपने अभी अभी जो टाइप किया है, you have done the typing by mistake and you wanted to remove it, तो आपको undo करना है, redo करना है, तो आप undo का बटन यहाँ से सिंपली प्रेस कर सकते हो. या आपको शॉर्टकट की अगर पता है तो दैट इज अ बेस्ट ऑप्शन. आप undo कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड से, सॉरी कंट्रोल प्लस वाई से, एंड कंट्रोल प्लस जेड से हम अंडू कर सकते, सॉरी कंट्रोल प्लस वाई से हम रीडू कर सकते हैं. रीडू मतलब जो काम मैंने अभी किया था मैं दोबारा से वही वापस करना चाहती हूँ, तो आपके पास ये शॉर्टकट कीज भी होती है यहाँ पे. एंड यू कैन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को, कि आपको इसमें क्या क्या ऑप्शंस चाहिए. आपको न्यू स्लाइड लेनी है, अगर इंसर्ट करनी है, तो आपको वो ऑप्शन भी यहाँ पे चाहिए, ओपन करने के लिए चाहिए, या फिर मेल करने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आपने मेल करना है उसको, वो ऑप्शन भी आपको ये चाहिए. वॉट एवर द मेन्यूज यू वॉन्ट यू कैन शो इट इन क्विक एक्सेस टूल बार अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज आफ्टर टैब्स. ये जो पूरा होता है ना, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे टैब्स हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन. ये सारी चीजें कहाँ पर है, रिबन पर होती हैं. रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं लाइक दिस. नाउ द मेन्यूज आर नॉट कमिंग, only the names of the tabs are coming, but I can unhide the ribbon also by clicking again on this button. So this is the ribbon. This area is called as ribbon. ठीक है. नेक्स्ट इज ये चीज जो होती है ये आपकी स्लाइड्स होती हैं. अब स्लाइड्स के डिफरेंट व्यूज होते हैं विच यू कैन चेंज फ्रॉम हियर. लेट्स से मैं इसमें एक और स्लाइड ऐड कर देती हूँ, राइट क्लिक एंड ऐड अ न्यू स्लाइड. आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग इन दिस स्लाइड नाउ, टिल नाउ. अभी नाउ लेट्स से कि आपको इसको कलर दे देते हैं एक बारी.
थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम कलर दे रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी फर्स्ट स्लाइड थी, कौन सी सेकंड स्लाइड थी। तो हमने इसको कलर दे दिया। ठीक है। अभी नाउ आपको क्या करना है कि ये वाली स्लाइड को ऊपर लेके जाना है और वो वाली फर्स्ट स्लाइड को नीचे लेके आना है। यू वांट टू चेंज कि कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। एक लेट से एक और स्लाइड है हमारे पास जिसका ब्लू कलर है। ओके। सो अभी नाउ आई वांटेड टू डू सम चेंजेस इन माय स्लाइड कि कौन सी फर्स्ट नंबर पे आएगी, कौन सी सेकंड नंबर पे आएगी। आई वांटेड टू मेक सम चेंजेस। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल व्यू, जिसमें आपकी सारी स्लाइड्स जो है आपकी वो राइट हैंड साइड में आ रही है, एंड द स्लाइड ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग, जिसमें आप अभी ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, दैट स्लाइड इज कमिंग हेयर इन द प्लेस होल्डर। तो इस एरिया में आ रही है, ये आपके राइट साइड में आ रही है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज दिस एरिया इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। तो आपके प्लेस होल्डर वाले एरिया में आ रही है, ये आपका नॉर्मल व्यू होता है। वी हैव थ्री मोर व्यूज। नेक्स्ट व्यू इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। If I click on slide sorter view, all three slides will appear like this. Now I can drag and drop and change कि कौन सी फर्स्ट नंबर पे चाहिए, कौन सी सेकंड नंबर पे चाहिए। सपोज पिंक स्लाइड आई वांट ऑन द फर्स्ट नंबर, आई कैन ड्रैग इट simply like this. And this blue slide I want on the second number, simply drag it like this. Drag and drop से you can change the orders of the slide. This is called a slide sorter view. उसको slide sorter view कहते हैं। Next आता है हमारे पास reading view. If you wanted to read one by one your slides, you can open the reading view. This is reading view, and you can go to the next slide then. Like I will start from this one, pink slide, then blue slide, and then this slide. ठीक है, this is reading view. Next is slide show. जब आप present करते हो, if you are presenting something in front of your audience, you will not open the reading view, you will open slide show. Slide show में क्या होगा, जो animations होंगी वो भी display होंगी। अभी तो खैर हमने कोई animation नहीं add करी है, तो nothing is coming, but if you will add the animation, so that will also appear, जो कि reading view में normally नहीं आती है। ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस। एंड यू कैन जूम इन एंड जूम आउट ऑल्सो। जूम इन जूम आउट क्या होता है, आपको स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करना है। अभी लाइक राइट नाउ इट इज 69%, दिस इज द जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन। सो ये जूम आउट इन करना है मुझे, तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, द स्लाइड विल लुक बिगर। एंड अगर आप माइनस के साइन पे क्लिक करोगे तो वो जूम आउट हो जाएगा एंड द स्लाइड विल लुक स्मॉलर। So this is zoom in and zoom out option. And obviously this is the title bar, sorry, the status bar. Status bar से आपको पता चलता है how many total slides you have in your presentation, right? Like it is showing 1 out of 3 slides. ये very first slide है out of third slide. If I'll click on this one, so it will show me 3 out of 3 slides. 3 of 3 means this is the third slide out of total 3 slides. ठीक है, तो this is called as status bar. The top bar is called as title bar and the bottom bar is called as title bar. Sorry, status bar. Okay. And now what is this? This white area is called notes area. जब आप ऑडियंस के सामने कुछ प्रेजेंट करते हो, यू कैन ऑल्सो टाइप योर मैसेज वॉट एवर यू विल स्पीक एट दैट टाइम। यू कैन ऑल्सो टाइप योर मैसेज हियर वॉट एवर यू वॉन्टेड टू स्पीक। वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा, बट आप उसका प्रिंट आउट लेके यू कैन मतलब यू कैन पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन देन प्रेजेंट टू योर ऑडियंस। ठीक है। दिस इज अ easier way to present something in front of your audience or to front of in front of large audience। ठीक है। So these are the different parts of PowerPoint presentation. Okay, next is vocabulary or the words we will be using in this chapter. Presentation, it is already clear to you. Presentation is a collection of individual slides that contain information on a topic. किसी भी topic पे आप information collect करके if you are presenting, that is known as presentation. Slide is
सिंगल स्लाइड, जो आपने एक इंडिविजुअल स्क्रीन ओपन करी है अपने सामने, ये जो आप ऐसे करके जब आपने प्रेजेंट किया, तो जो सिंगल स्लाइड जो आपकी स्क्रीन आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइड, जिसमें सारी स्लाइड्स नहीं दिख रही, आपको पूरा टॉपिक नहीं दिख रहा, बट टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग यू प्लेस इन अ पावर पॉइंट स्लाइड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अब आप इसके ऊपर कुछ भी आप लिखोगे, इफ यू विल टाइप समथिंग, और इफ यू विल ऐड एन इमेज, और इफ यू विल क्रिएट अ टेबल, और इफ यू विल क्रिएट अ चार्ट, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वॉट एवर यू विल राइट, वॉट एवर यू विल इंसर्ट इन दिस स्लाइड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। प्लेस होल्डर क्या होता है? empty objects or new slides surrounded by dashed lines that hold text, images and other objects on the slide. So ये जो empty area है, जिसको हम dotted line से आ रहा है अभी, इसको कहते हैं हम प्लेस होल्डर, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं। ये सब चीजें हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर, right? Okay, now quick access toolbar, ribbon, navigation pane, और ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ व्हाट इज बैक स्टेज व्यू? बैक स्टेज व्यू क्या होता है? बैक स्टेज व्यू प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शंस फॉर सेविंग एंड ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग द फाइल्स। Click on the File tab. You can choose an option from the left side of the page to get back to your current working. Just click on the tab on the ribbon. So let's check what is this backstage view. Go to the File tab. These all menus are called as backstage view, जिसमें आपके पास सेव का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन है। यू कैन गो टू ऑल recent PowerPoint presentations. If I'll click on this one, I can see all the presentations which I've created till now. ठीक है, तो you can see all your recent PowerPoint presentations. You can print, you can save, you can use help option, you can take a new slide. So this is called as backstage view. If I'll go to home, I will come back to my same presentation again. This is called as backstage view. Next is creating a new presentation. Now from here the main topics get started, कि आपको presentation कैसे start करनी है, how can you use the templates. So we can create a presentation in two different ways. We can you create it using a blank presentation also, and we can create using a template also. Now let's start it from the beginning. I will close this PowerPoint and I'll open it from the beginning now. Go to all programs, open, go to Microsoft Office, and then click on PowerPoint presentation. Now, once you will click on this, right now, because I am using Microsoft Office 2007, so 2010, this option is not available for me. But आप अगर यहाँ से जाके open पे अभी if I'll click on हाँ राइट, दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास 2013 है तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आएंगे। न्यू में भी नहीं है, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है टेम्पलेट्स वाला। आई डोंट हैव दिस ऑप्शन। इफ यू आर हैविंग 2013 और 16 और 18, देन यू विल फाइंड दिस ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, यू वांटेड टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन और यू वांटेड टू यूज इट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होते हैं पहले से ही डिजाइन बने हुए होते हैं, आप उन डिजाइन को एडिट करके अपनी खुद की प्रेजेंटेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पहले से ही प्रेजेंटेशन का लेआउट बना होगा कि हर स्लाइड पे कैसा बैकग्राउंड होगा, कैसी डिजाइनिंग होगी, वो सारी चीजें पहले से सेट करी हुई होंगी। आपने चूज करा डिजाइन और वो सारी की सारी स्लाइड्स में अपीयर हो जाएगा। ऑल्दो वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। एंड हाउ कैन वी डू दैट? we can go to PowerPoint, we can go to डिजाइन टैब। यस, वी कैन गो टू डिजाइन टैब, और ये आपके पास पहले से ही
टेम्पलेट्स होते हैं, इनबिल्ट थीम्स होती हैं, आप इनमें से कोई भी थीम सेलेक्ट करोगे आपकी सारी स्लाइड्स में वो सेम थीम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट स्लाइड ऐसी चाहिए या फिर ऐसी चाहिए, जैसी भी आपको चाहिए, दिस इज लाइक सपोज मेरे को ये वाला डिजाइन पसंद है तो आई विल चूज दिस वन। तो इसमें मैं जब न्यू स्लाइड ऐड करूंगी तो उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली डिजाइन आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज थीम टेम्पलेट। जो पहले से ही आपको डिजाइन मिलते हैं बने हुए, यू कैन जस्ट सिंपली ऐड योर टेक्स्ट। अब इसमें देखो, आपको फॉन्ट भी नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं चेंज करना, क्योंकि ऑलरेडी उसने सेट कर दिया सब कुछ। आपको ये पसंद नहीं है, यू वांटेड टू डू सम चेंजेस, इवन आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो, आपको ग्रीन कलर का नहीं चाहिए, यू वांट सम अदर कलर, you can change the color by yourself. You can choose different types of colors from here. Let's say मुझे ये ब्लू कलर, ब्लू कलर का करते हैं, तो आपकी सारी स्लाइड्स का एक साथ डिजाइन चेंज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ ग्रीन नाउ द ब्लू कलर इज कमिंग। ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांटेड टू चूज एनी अदर थीम, यू कैन चूज एनी अदर थीम ऑल्सो। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी थीम चूज करनी है। यू कैन, इससे क्या हुआ, आपका एक डिजाइन, एक फॉर्मेट रेडी हो गया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ अपना टेक्स्ट ऐड करना है। डिजाइन इज ऑलरेडी डन। ठीक है। यू कैन सिंपली ऐड योर टेक्स्ट नाउ। So this is called as designs. And this option I don't have, so I cannot show you right now. I have an option of blank presentation only. About slides and slides layout, मैंने आपको पहले से ही बता दिया slides layout क्या होते हैं। अच्छा, slides layout नहीं बताया, slides layout पे आते हैं। स्लाइड लेआउट का मतलब होता है कि आपको अपने स्लाइड पे क्या क्या चीजें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, where are these are the new slides, click on new slides and these are the slides layout। आपको ऐड करना है हेडर सेक्शन, आपको कंपैरिजन करना है किसी किन्हीं दो चीजों का, या आपको पिक्चर्स ऐड करनी है, या आपको ब्लैंक चाहिए, या आपको टेक्स्ट ऐड करना है। वॉट एवर द टाइप यू वांट, लाइक मेरे को सपोज कंपैरिजन करना है तो ये ऑलरेडी ये इस फॉर्म में आ जाएगी स्लाइड। आप अपना, जैसे लेट से आपको समर सीजन और विंटर सीजन का कंपैरिजन करना है, तो आप यहाँ लिखोगे विंटर्स और यहाँ पे लिखोगे समर्स, एंड देन यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो वो कंपैरिजन की फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको टेक्स्ट एज इट इज इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंट लेआउट। आप इनमें से कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज इट। ठीक है। लाइक दिस, इफ यू वांटेड टू add something, you can add like this also। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट लेआउट्स विच यू कैन ऐड। आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, दैट यू कैन चूज। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट टू अ स्लाइड। टू ऐड अ टेक्स्ट इन टू अ स्लाइड, दैट इज वेरी सिंपल। आपको बस यहाँ पे जहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, वहां पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग, लाइक whatever the topic you wanted to write। ठीक है। So this is, you just have to click on the area where it is coming, type your text, and then or click here to add your text. You can click on that area and then you can start typing। Next is moving a text box। यू कैन ऑल्सो मूव दिस टेक्स्ट बॉक्स। लेट्स से कि आपने यहाँ पे समर्स लिखा, अब मुझे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में नीचे ये समर यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए था, तो मुझे इस बॉक्स को नीचे लाना है। तो यू विल ब्रिंग ऑन दिस डॉटेड बार एंड देन ब्रिंग इट डाउन। So text will be shifted like this। So you can shift your text box anywhere you want, right? This is moving the text box।
Next is, और ऐसे ही अगर आपको कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए तो यू कैन सिंपली सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट। ये लाइक ये वाला समर वाला टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं चाहिए, यू कैन चूज दिस वन। जब वो पूरा हाईलाइटेड हो जाएगा, ब्लू कलर के बॉर्डर से आ जाएगा, एट दैट टाइम यू कैन प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, इट विल गेट डिलीटेड। ठीक है। इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, हाउ कैन वी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? यू कैन सिंपली राइट क्लिक ऑन द स्लाइड जिसके बाद आपको इंसर्ट करनी है न्यू स्लाइड। इसके बाद लेट्स से मुझे एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो आई कैन सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, or you can go to this slide and then click on new slide button in the home tab. So this is your choice how you want it to do. ठीक है। Next is saving a presentation. Saving a presentation is same as we normally do. You can go to file tab, go to save, and then give a name to your presentation and choose a location where you wanted to save. Let's say I wanted to save it in D drive, in primary classes folder, in class 4, with the name types of clothes. Yeah, science project, and then save it. It will get saved. Next is, you can also press Ctrl plus S to save your file. This is a shortcut key to save your file. Ctrl plus S you can save. एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जब आप फाइल को सेव करोगे तो जो ऑटोमेटिकली पीपीटी होती है उसके पीछे एक्सटेंशन लग जाती है। जो भी आपने फाइल का नेम दिया है वो फाइल नेम प्लस डॉट पीपीटी एक्स लग जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। Now, how to format in a slide, how to change the font style and everything, this we will see in the next class now.